Hello viewers, welcome back to my channel. Today we will learn how to find out the cube and cube roots. This is the chapter number 7 of class 8 from NCERT book. Here, first of all, we will check how to check that the given number is perfect square or not. Suppose I am taking one number, that is 216. Now, you all know how to solve any number with the help of prime factorization. Definitely we will take prime numbers to make their factors. So I am doing prime factorization of the given number. Fine. So last digit is 6. It can be a factor of 2. So I am taking 2. 2 goes one time, and here 1 is not divisible. So I will take 6 together. When we are taking two numbers together, means I have to apply 0 over there. Then I can divide by 2 with the 16. That will be 8. Now again last digit is 8. So it will be divisible by 2. 2 5 times 10 and 2 4 times will give you 8. Now 2 times, remainder 1, 2 goes 7 times. Now here I will take table of 3 because 27 is divisible by 3. So how many times? It will divisible by 9 times. I will take 3 again and it will divide by 3 times. Now again I am taking 3 and here I am getting 1. Means these are the factors of 216. But how to check it is a perfect cube number? Fine. I am writing the factors. It can be written thus 216 can be written 2 multiply 2 multiply 2. 3 times 2 I was having and 3 times 3 I was having. So 3 multiply 3 multiply 3. You know very well when we were studying about the square root, we were doing pair. Okay, here we will take triplet. Triplet means any number you are taking, it should be 3 times in the factors. 2 is 3 times over there. So we will take 2 out of them, and here we will apply multiply by 3, and again we are having the triplet of 3. 3 is 3 times over there. So I will take 1 3 out of them. Now it will multiply and it will give you 6. Means 216 can be written in the form of 6 cube. Now suppose I am having a number like 100. I want to check it is a perfect cube or not. So I will write 100 and I will do prime factorization. So 2 5 times will give you 10 and 0 I will write as it is. Now 2 how many times? 2 goes 2 times and remainder 1, that will be 10 and it will be 5 times. Now I will write 5 times 5 goes 1 time. Now factors are 100 can be written 2 multiply 2 multiply 5 multiply 5. Here 2 is not in triplet, even 5 is also not in triplet. So we are not having any number in triplet, so it is not a perfect cube. This number means 100 is not a perfect cube. It is not perfect cube. This is the way to check. In question number 2, find the smallest number to be multiplied to obtain a perfect cube. किसी नंबर को परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए उसके साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करना है ये आपको ऑब्टेन करना पड़ेगा. सपोज मेरे पास एक नंबर है 243. अब 243 एक परफेक्ट क्यूब नहीं है, ये तो क्वेश्चन ने पहले ही बोल दिया क्योंकि इसमें कुछ मल्टीप्लाई करवाना चाह रहा है वो. लेकिन हम सबसे पहले कैसे डिसाइड करें कि वो नंबर क्या होगा, तो हम इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं. अगर हम इसके प्राइम फैक्टर करते हैं तो आप देखिए सम ऑफ ऑल डिजिट्स क्या हो रहा है, 6 and 3 9. तो ये 3 की टेबल से डिवाइड हो जाना चाहिए. हम 3 की टेबल लेंगे. 3 की टेबल में 24 8 टाइम एंड 3 1 टाइम. अगेन 8 और 1 9 होता है, 3 से डिवाइड हो रहा है 81 भी हो जाएगा. 3 की टेबल में 2 टाइम एंड ये 2 रह जाएगा 7 टाइम. अगेन 3 की टेबल आप ले सकते हैं और ये कितना हो जाएगा 9 टाइम. अगेन 3 टेबल 3 टाइम 3 गोज 1 टाइम. आपके पास फैक्टर्स आ चुके हैं. 243 को 10 वी कैन राइट in the form of 3 multiply 3 multiply 3 and 2 time more I am having 3. So this is the time to make triplet. So this one is making you triplet, but here how many 3s are less to make triplet? 1 3 is still less. अगर यहाँ एक 3 और आ जाता तो ये ट्रिपलेट बन जाता. सो वो नंबर क्या है जो मुझे मल्टीप्लाई करना चाहिए ट्रिपलेट बनाने के लिए? 3, क्योंकि हमारे पास 3 की तो सीरीज़ कम पड़ रही है. सो
3 should be multiplied to obtain perfect cube. So आपके पास वो नंबर क्या आ गया है 3, बिकॉज 3 इज नॉट इन ट्रिपलेट. 3 क्यों करना है? क्योंकि 3 ट्रिपलेट में नहीं हो रहा है. इसको रखने से 3 का ट्रिपलेट बन सकता है. पार्ट ऑफ दिस यूनिट हियर, व्हाट द स्मॉलेस्ट नंबर टू बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब. कोई नंबर अगर परफेक्ट क्यूब नहीं है तो आपको ऐसा कौन सा नंबर उसमें से डिवाइड करना चाहिए कि वो जो नंबर है वो परफेक्ट क्यूब बन जाए. बिल्कुल सेम जैसा पहले हमने किया था, हम प्राइम फैक्टर ही फाइंड आउट करेंगे. तो आइए इसको स्टार्ट करेंगे हम विद द प्राइम फैक्टराइजेशन. मीन्स आपके पास देखिए लास्ट डिजिट क्या है 8, 2 से डिविजिबल है. तो आप क्या लिखेंगे 2 6 12 एंड 2 4 8. नाउ 2 की टेबल में 3 टाइम, 2 की टेबल में 2 टाइम, अगेन 2 की टेबल में 16 टाइम हो जाएगा, 2 की टेबल में 8 टाइम आ जाएगा, 2 4 टाइम आ जाएगा, अगेन 2 2 टाइम एंड 2 विल बी डिविजिबल बाय 1 टाइम. सी 28 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2. How many 2 we are having? 7 times 2 I am having. But after making triplet, which number is not in triplet? कौन सा नंबर है जो ट्रिपलेट में नहीं जा रहा है? ये लास्ट वाला 2 ट्रिपलेट में एडजस्ट नहीं हो रहा है. अब हमें पूछा था क्या नंबर डिवाइड करें. हम इस नंबर में 2 का अगर डिवाइड कर दे तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा. फिर तो जो नंबर बने वो ऑलरेडी ट्रिपलेट में है. सो वी विल डिवाइड बाय 2. अब 2 आपको पता चल गया, एक्स्ट्रा 2 को रिमूव करना है टू ऑब्टेन परफेक्ट क्यूब. परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए एक्स्ट्रा 2 को डिवाइड वाले 2 से कैंसिल करके हटाना पड़ेगा. नाउ स्टूडेंट्स वी विल लर्न हाउ टू गेस द क्यूब रूट ऑफ द गिवन नंबर विदाउट डूइंग एनी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. आपको कोई प्राइम फैक्टर नहीं करना, कोई ट्रिपलेट नहीं बनाना है. डायरेक्ट नंबर को देख के बताना है कि ये कौन सा नंबर है जिसका क्यूब करने पे ये नंबर आता होगा. यानी कि आपको क्यूब रूट फाइंड आउट करना है, गैस करना है. तो इसका ट्रिक समझ लीजिए आप लोग स्टूडेंट्स. पहले तो जिस नंबर का क्यूब रूट फाइंड आउट करना है उसका राइट साइड से लेफ़्ट साइड में आते हुए 3 नंबर आपको क्रॉस करने हैं. क्रॉस कैसे करने हैं? आप इधर से आइए, राइट से लेफ़्ट में आइए, 3 नंबर क्रॉस करेंगे तो ये नंबर कैंसिल हो गया. ठीक है. यूनिट प्लेस का नंबर क्या है आपके पास? 1 है. ऐसा कोई नंबर है जिसे क्यूब करने पर यूनिट प्लेस पे 1 आता हो? देखिए 1 का क्यूब अगर आप करते हैं 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 तो 1 मिलता है. ठीक. यानी कि ये यूनिट प्लेस को अगर मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ तो यूनिट प्लेस पे 1 लाने के लिए मुझे क्या लेना पड़ेगा? 1, क्योंकि ये 1 का क्यूब करने पे 1 आ रहा है. अब आगे क्या बचा आपके पास? जो अनकट नंबर है, जो नंबर कट नहीं हुआ था, दैट इज़ 1. ये कोई ऐसा नंबर है जिसका क्यूब करने पे 1 आता हो या 1 से स्मॉलर? डेफिनेटली 1 का क्यूब करने पे 1 आ रहा है. 1 से स्मॉलर तो 0 होता है, तो 0 का क्यूब तो 0 ही रहेगा, वो हम लिख नहीं सकते हैं. तो हम क्या लिखेंगे? इस 1 के लिए हमने क्या लिख दिया? ये वाला 1. यानी कि 1331 जो है वो 11 का क्यूब है. मीन्स आप 11 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर में आपको 1331 मिलेगा. दिस इज़ योर ट्रिक. ठीक है. अब हम इसको एक बार और समझ लेते हैं. यहाँ पे 5 डिजिट का एक नंबर दे रखा है. ठीक है. आपसे मैंने बोला था राइट साइड से 3 डिजिट काउंट करें और उनको कैंसिल कर दीजिए. राइट साइड से 3 डिजिट कैंसिल हो गए. ठीक है. पर जो डिजिट आपने नंबर्स कैंसिल किए थे उनका यूनिट प्लेस का नंबर क्या है? 6 है. ऐसा कोई नंबर सोचिए जिसको 3 टाइम सेल्फ मल्टीप्लाई किया जाए तो यूनिट प्लेस पे वो 6 देता हो. गैस कीजिए. 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब क्या होता है? 27, और 4 का क्यूब क्या होता है? 4 4 जा 16, 16 4 जा 64. 5 का क्यूब 125 होता है और 6 का क्यूब क्या होता है? 216 होता है. तो आप देखिए 6 का क्यूब 6 × 6 × 6 दैट इज़ 36 एंड 6. तो आप देखिए 6 6 जा 36 का 6 आएगा ना यूनिट प्लेस पे. तो आपको यहाँ पे 6 लिखना है क्योंकि ये वाला 6 कौन देगा? 6 का क्यूब देगा यहाँ पे 6. ठीक है. अब ये 17 बचा है. ऐसा कोई नंबर है जो सेल्फ मल्टीप्लाई करें 3 टाइम और 17 दे दे?
थिंक अबाउट इट, नहीं दे रहा है। तो आप 17 से छोटा नंबर लाने के लिए ट्राई कीजिए, कोई नंबर जो सेल्फ मल्टीप्लाई हो, जिसका क्यूब करने पे 17 से स्मॉलर आता हो। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27। देखिए 27 तो ग्रेटर हो गया, 8 स्मॉलर है ना 17 से, तो 17 से छोटा नंबर मुझे क्या मिल रहा है, 8 मिल रहा है, लेकिन वो किसका क्यूब है, 2 का क्यूब है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगी, 2। ये जो गिवन नंबर है ये 26 का क्यूब है। दिस इज़ द ट्रिक टू फाइंड आउट और टू गेस द नंबर व्हाट विल बी द क्यूब रूट।